हेलो स्टूडेंट्स, 7th ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੋਲਰੋਸ਼ ਲਾ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੋਲਰੋਸ਼, KOHLRAUSCH, ਕੋਲਰੋਸ਼ ਲਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਰੋਸ਼ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो वो अपनी डाइल्यूट कंडीशन के जोड़े आयन्स ने वो अपनी माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिहदे करके वो मोलर कंडक्टेंस जी है वो इफेक्ट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ जे इहनूं असीं डाइल्यूट करी जाइए एक टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम फर्दर डाइल्यूशन करी जाइए, फिर वो जी मोलर कंडक्टेंस होएगी वो किहदे बराबर होएगी। असी डाइल्यूशन जी है वो इनफाइनाइट टाइम है। हुण असी मैं एक टर्म बोलांगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिटी। लिखण दे विच इस तरह आएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिटी और इनफाइनाइट टाइम। एक सोल्यूशन है वो कंसनट्रेशन मोलर दे विच मोलैरिटी है, उन्होंने असी काफ़ी वारी डाइल्यूट कर लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और इन्ना ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया कि हुण उहदे जिहड़े आयन्स ने उन्हां दी जिहड़ी माइग्रेशन आ, उन्हां दी जिहड़ी मूवमेंट आ, वो बड़ी आराम नाल जिहड़ी है उन्हां दा सम टोटल असीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ इहदी स्टेटमेंट नोट कर लो। इट स्टेट्स दैट at infinite dilution, the molar conductivity of an electrolyte is the sum total of ionic conductance of all the cations and anions present in the solution. Or mathematically we can say that molar conductance at infinity or at infinite time is equal to sum total of molar conductance of all the cations ਨੂੰ ਅਸੀਂ C पॉजिटिव ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ रिप्रजेंट ਕੀਤਾ, प्लस summation molar conductance at infinity of all the anions, A नेगेटिव आर anions। ठीक है, summation molar conductance at infinity of cations, all the cations, summation molar conductance at infinity of all the anions, and the sum total जड़ा वो molar conductance at infinity जड़ा होएगा। और we can say जे मान लो coefficients यूज़ हो गए ने किसी भी स्टेटमेंट दे विच, then molar conductance at infinity will be equal to say x, जड़ा coefficient कुछ भी हो सकता है, लैम्डा इनफाइनाइट टाइम कैटायन, और y लैम्डा इनफाइनाइट टाइम A। मेन वैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ रिलेशन ਇਹ याद रखना, जे कोएफिशिएंट्स आ जाते तो अगे कोएफिशिएंट लग जाएंगे। हुण ਇਹ कोलरॉश लॉ ਜਿਹੜਾ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डाइल्यूशन, कि तुसीं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सोल्यूशन ਨੂੰ डाइल्यूट करते हो उस वेले ਉਹਦੇ ਕੀ इफैक्ट ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ कोलरॉश लॉ
किस किस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਰਸ਼ ਲਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਾਲਰਸ਼ ਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। Next topic is applications of Colrosh law. फर्स्ट एप्लीकेशन है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸੋਸੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਔਰ ਵਿਚ ਆਰ ਵੀਕਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟਡ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ non electrolytes, or we can say weak electrolytes, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। they are sparingly soluble, we can say ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਰਸ਼ ਲਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਾਲਰਸ਼ ਲਾ ਵੀ ਕੈਨ, ਲਿਖੇ ਰੱਖੋ, with the help of Colruyt law molar conductance at infinity of a weak electrolyte can be determined। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਾਲਰਸ਼ ਲਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਫ ਏ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ numerical method है। numericals ਦੀ with the help of numerical we can determine this application। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ numerical ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। second application is determination of, right now, determination of dissociation, degree of dissociation, determination of degree of dissociation। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ dissociated over total number of the particles या total number of the molecules present in the solution। ਹੁਣ ਇਹ calculated value ਆ ਕਿ degree of dissociation is equal to molar conductance at any concentration over molar conductance at infinity, where molar conductance, this sign C ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, this is molar conductance at particular concentration, and this is molar conductance at infinity। ठीक है। ਹੁਣ degree of dissociation, that is alpha, is equal to molar conductance at particular concentration। numerical ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ given ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ given ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिटी कितों लभना फ्रॉम कॉलरश लॉ की सीगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिटी इज इक्वल टू सबमिशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिटी ऑफ कैटायंस प्लस सबमिशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफिनिटी ऑफ एनायंस। कॉलरश लॉ इत्थों यह चीज़ जी है वो इत्थे पुट करांगे मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पता होएगी तो वी कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसीएशन। एप्लीकेशन है भी कि विद द हेल्प ऑफ कॉलरश लॉ वी कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसीएशन दैट इज अल्फा। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसीएशन कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है। This was degree of dissociation and this is dissociation constant। A third application है कॉलरश लॉ दी dissociation constant that is Kc। ਇਹ थोड़ा ਜਿਹਾ लास्ट सोल्यूशन चैप्टर का थोड़ा जिहा रैफरेंस आ जाता इत्थे कि ਅਸੀਂ डिसोसीएशन की गल कर रहे हैं। से इलैक्ट्रोलाइट AB है विच कैन बी डिसोसीएट इनटू A पॉजिटिव एंड B नैगेटिव। जिस तरह तुसीं उत्थे एसोसीएशन डिसोसीएशन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासिस के अंडर यह टॉपिक किया सीगा। जिस वेले असीं इहनूं डिजोल्व करते हैं इस इलैक्ट्रोलाइट नूं दो कंडीशनस जिहड़ियां ने वो या दो स्टेट्स जिहड़ियां ने बनदियां ने। से इनीशियल स्टेट इट्स वैल्यू इज़ 1 एंड दीज आर 0। ਇਹਦਾ मतलब की है 1 का मतलब है हाली सिर्फ इलैक्ट्रोलाइट असी लिया है डिसोसीएट नहीं होया। हाली सिर्फ इलैक्ट्रोलाइट लिया है डिसोसीएशन नहीं हुई। ठीक है 0 0। फाइनल स्टेट जो इलैक्ट्रोलाइट में असी पानी के डिजोल्व कर दिता डिसोसीएट हो गया। काहदे डिसोसीएट होया कैटायन ते एनायन दे विच दैट इज इट्स फाइनल स्टेट। हुण इह चों एट इक्विलिब्रियम कोई ना कोई कुछ पार्ट जिहड़ा डिसोसीएट होएगा कुछ अनडिसोसीएटेड रह जाएगा। दैट अनडिसोसीएटेड पार्ट में बी 1 माइनस अल्फा एंड दीज आर अल्फा। आ गया यार सोल्यूशन दे विच कीता सीगा। ठीक है। नाउ हुण इन्हां नूं असीं विद रिस्पैक्ट टू A पॉजिटिव ते B नैगेटिव की कंसनट्रेशन के रिस्पैक्टिवली असीं लेना तो डिसोसीएशन कॉन्सटेंट Kc बिल्कुल जिस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीगा दैट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ A कंसनट्रेशन ऑफ B मतलब प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ AB दैट इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। हुण इन्हां दी कंसनट्रेशन जिहड़ी है वो असीं किस तरह रिप्रजेंट कर सकते हैं। से Kc इज इक्वल टू हरेक फैक्टर के नाल C जिहड़ा असी C इज मैंट फॉर कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन जिहड़ी वो लगा देने किसी C इंटू A पॉजिटिव दी डिसोसीएशन कितनी है अल्फा B पॉजिटिव C या तुसीं इत्थे ही C पुट कर सकते हो फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ डेरीवेशन कि आ साडा प्रोडक्ट है यह रिएक्टेंट है कंसनट्रेशन नाल पूरी टर्म नूं जिहड़ा उसी मल्टीप्लाई कर लिया C अल्फा अगेन डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। इनू सॉल्व कर लो Kc विल बी इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर C माइनस या असी इस तरह लेते C 1 माइनस अल्फा C नाल एक C स्क्वायर जिहड़ा वो कैंसल आउट हो गया। दैन Kc विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। इनू मैमोराइज कर लो। हुण देखो यह किस तरह रिलेटेड है कॉलरश लॉ के नाल किस तरह रिलेटेड है
डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्केयर। C इज कंसनट्रेशन, अल्फा स्केयर, अल्फा कितों फाइंड आउट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतों, तो यह कितों फाइंड आउट होया सीगा? कॉलरश लॉ तो। ठीक है, फिर दोबारा सुन लो कि ए डिसोसिएशन कांस्टेंट हाउ इट इज़ लिंक टू कॉलरश लॉ। फॉर्मूला जोड़ा बनया वो की बनया KC इज इक्वल टू C अल्फा स्केयर ओवर 1 माइनस अल्फा। अल्फा या अल्फा स्केयर की वैल्यू कितों आनी है? डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने वास्ते सानू की चाहिए सीगा? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी कितों में आई? कॉलरश लॉ तो। ठीक है, इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू कॉलरश लॉ। इट वाज इट्स थर्ड एप्लीकेशन, नोट कर लो। एंड फाइनल एप्लीकेशन इज फोर्थ वन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ solubility. Determination of solubility. Fourth application is determination of solubility of Sprengli soluble electrolytes. Sparingly soluble electrolytes या sparingly soluble चीज़ां ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ partially soluble ਹੋਣ। For example, कोई electrolyte AB है, say its solubility is 50%. It mean 1 ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਸੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 50% ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, 50% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਸੋਲੂਬਲ ਹੈ, ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ? ਇਟਸ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਲੂਬਲ ਸੀਗਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਚਮਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। 2 ਚਮਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਚਮਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਪੂਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ 'ਚੋਂ 50% ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, 50% ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਾਫ ਸਪੂਨ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆ, 2 ਗ੍ਰਾਮਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੀਕਰ ਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮੋਲਰ ਬਣਦਾ ਅਤੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਫ ਮੋਲਰ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਸਪਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ may be equal to kappa into 1000 over C molar। ਇਹ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ C molar is molar concentration, and molar concentration ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਸੀਗਾ
स्पेरिंगली सोलबल है, ਇਹਦਾ मतलब कुछ हिस्सा सोलबल होया होएगा, कुछ हिस्सा थले बैठ गया होएगा। ਜਿਹੜਾ सोलबल होया ਉਹਦੀ कंसनट्रेशन ਇਹਦਾ मतलब उन्नी होएगी। जिन्ना पार्ट सोलबल होया सोल्यूशन की कंसनट्रेशन उस हिसाब नाल डिवेलप होएगी। जे 50% होया 50% के हिसाब नाल, जे 60% होया 60% के हिसाब नाल। और इनू असीं इस तरह लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर सोलबिलिटी। और सोलबिलिटी में भी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी अगेन यह कितों लभना, फ्रॉम कॉलरस लॉ। मीन कि अल्टीमेटली ये चीज़ां डायरैक्टली और इनडायरैक्टली कॉलरस लॉ के नाल जिहड़ियां रिलेटेड ने। कॉलरस लॉ अपलाई होएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करांगे, वो असीं इत्थे पुट करांगे तो सॉल्युबिलिटी जिहड़ी लभेगी। उस तरह ही थर्ड एप्लीकेशन दे विच भी सीगा कि के सी इज इक्वल टू सी अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। अल्फा फाइंड आउट करांगे तो अल्फा किहदे बराबर सीगा, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसीएशन वाज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसनट्रेशन ओवर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी फिर उस तरह ही कॉलरस लॉ के नाल डिपेंडेंट है। जे सॉल्युबिलिटी की गल कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी कितों लभनी, कॉलरस लॉ तो। ठीक है, दिस वाज फोर्थ एंड फाइनल एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कॉलरस लॉ। हम देखो ये कॉलरस लॉ जिहड़ा है ये चीज़ां तो बड़ियां सिंपल ने, पर लेकिन जिन्नी देर तक असीं न्यूमैरिकल ये नहीं सॉल्व करांगे उन्नी देर तक ये थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती। पर फिर भी डेरीवेशन जिहड़ियां ने उन्होंने तुसीं अपनी नोटबुक दे विच अच्छी तरह लिख के रखो। नैक्सट जिहड़ा मैं कोशिश करांगा कि न्यूमैरिकल्स जिहड़े ने एक बारी इन्हां दे न्यूमैरिकल जिहड़े मैं तुहानूं आप दसां, फिर तुसीं उहदी प्रैक्टिस जिहड़ी ओह कर सकदे हो। ठीक है, अज दे लैक्चर बस इन्ना ही है, इहनूं अच्छी तरह नोट कर लो। कॉलरस लॉ लैसन काफ़ी अगे तक जा चुका है, इस तो अगे कुछ ही टॉपिक रह गए ने, यूनिट तुहाडा भी खत्म हो जाना है। इस करके यह यूनिट भी अच्छी तरह तुसीं अपने नोटबुक ते लिख के नोट्स तैयार करो। अज दी इन्ना ही, चैनल ते जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।